Hello everyone, welcome to economics class. In the previous video, we discussed about the basic concepts, that is the economics and economy, chapter number 1 of 11th class. Today we are going to discuss about the second part of this chapter. In this chapter, we will discuss about microeconomics and macroeconomics, then the normative and positive economics, and last topic, this is the types of the economy. Let's start with the microeconomics and macroeconomics. Dear students, this is very important topic because generally questions related with micro and macroeconomics are asked in the question paper. They may be in terms of the definitions, they may be in terms of the examples, and they may be in terms of the comparison. So we will discuss here about the comparison, and with the help of the comparison we will be able to understand the definitions as well as the examples of these two branches of economics. Now, what is microeconomics? This is the first point is related with the definition. Microeconomics studies individual economic units like a firm, a producer, a consumer, etc. That is, microeconomics is that branch of economics that deals with the economic issues or economic problems of an individual unit like a firm, a consumer, a producer, etc. On the other hand, macroeconomics studies a nation's economy. That is, macroeconomics is that branch of economics that deals with the economic issues of or economic problems of an economy as a whole, like national income, like poverty, unemployment, inflation, etc. Like money prevailing in a country. Money यूनिफॉर्म होती है, पूरे कंट्री में एक ही होती है. ऐसा नहीं होगा कि 2000 का नोट किसी इंडिविजुअल का रेड कलर का है, किसी का पिंक का है, किसी का ब्लू है. ऐसा नहीं है. यूनिफॉर्म होती है फॉर द एंटायर इकॉनमी. दैट्स वाई दिस इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स. नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स primarily deals with individual income, output, price of goods, etc. Because we have already studied that microeconomics is that branch of economics that studies the economic issues or economic problems of an individual, that is, individual's income, production by an individual firm, price of good, etc. But on the other hand, microeconomics studies about the aggregates like national income, national output as well as general price level. यहाँ पर हम किसी कमोडिटी के अलग अलग प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं. यहाँ पर हम पूरी इकॉनमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सभी के जनरल प्राइस के बारे में स्टडी करेंगे. Third, this is microeconomics focuses on overcoming issues concerning the allocation of resources and price determination. Yeah, discrimination, it should be price determination. Yes, beta, we were discussing about the allocation of resources. Allocation of resources का मतलब होता है optimal use or wise use or rational use of limited resources. As we have already studied that resources are very limited and human wants are unlimited. Further, resources have alternative uses. That's why it is very important to use them wisely or rationally. So, microeconomics studies the rational use of limited resources, that is, allocation of resources at an individual level. On the other hand, macroeconomics focuses on upholding issues like employment and national household income या national income. Household word नहीं भी आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट शुड बी नेशनल इनकम. यहाँ पर जो मेजर इशू हैं वो इंडिविजुअल से हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन. इसलिए इस पॉइंट से हम एक और रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन. This is price determination. Clear beta? While macroeconomics is known as the theory of employment and income. This is theory of employment and income. So what we can say that microeconomics is also known as theory of price determination, while macroeconomics is also known as theory of employment, output and income.
Microeconomics accounts for factors like demand and supply of a particular commodity. That is, degree of aggregation is very limited in case of microeconomics. एग्रीगेशन का मतलब होता है सम टोटल. जैसे आपके इकोनॉमिक्स में मार्क्स आए 94 और एग्रीगेट आए आपके 91%. 91% का मतलब है कि दिस इज़ द सम टोटल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स. इसी तरह से जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन तो है यहाँ. हम बात करें मार्केट डिमांड फॉर आइसक्रीम. इट मीन्स इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर्स फॉर आइसक्रीम्स इन अ मार्केट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब एक टाइम में एक मार्केट में आइसक्रीम खरीदने वाले कितने कंज्यूमर्स हैं उसको हम कहेंगे मार्केट डिमांड. मीन्स एग्रीगेशन है लेकिन ये माइक्रो है. क्यों? क्योंकि इसमें हम सिर्फ आइसक्रीम के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ऑन द अदर हैंड माइक्रो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स फॉर द एग्रीगेटेड डिमांड एंड सप्लाई ऑफ नेशंस इकोनॉमी. हियर at macro level the degree of aggregation is quite large. Why it is quite large? क्योंकि इसमें हम एग्रीगेट्स को स्टडी करते हैं. हम यहाँ पर एडी के बारे में बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई. बच्चे इन कॉन्सेप्ट्स को हम आगे 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे. एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर नो मैटर हु इज़ परचेजिंग द कमोडिटी. हमारे यहाँ पर जो सामान प्रोड्यूस होता है एक साल में, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, उसको चाहे हम इंडियंस यूज़ करें या फॉरेनर्स यूज़ करें, लेकिन जितनी भी सामान खरीदा जा रहा है एक साल में उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड. इसी तरह से एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस होती हैं उसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई. सो व्हाट वी कैन understand from fourth point that the degree of aggregation at microeconomics at the level of microeconomics is quite limited. On the other hand, the degree of aggregation at macro level is quite large. Then fifth point, microeconomics offers a picture of goods and services that are required for an efficient economy. It also shows the goods and services that might grow in demand in future. क्योंकि ये इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता है इसलिए ये बताएगा हमें कि कौन सी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए, क्या सप्लाई क्या होगी. मींस क्योंकि ये इंडिविजुअल पर फोकस करता है इसलिए ये इंडिविजुअल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल टू अ कंट्री. देखो बेटे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं कि इन फ्यूचर कौन सी कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कौन सी चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे या किसकी सप्लाई बढ़ेगी, मतलब इंडिविजुअल्स पर रहेगा. जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये होगा कि कितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करना है एट द कंट्री लेवल. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स पॉइंट हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट अ स्मॉल स्केल. इसलिए इसको हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि ये टुकड़ों में स्टडी करता है. आप अपने आगे जाकर लास्ट चैप्टर में डिस्कस करोगे हाउ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड. हाउ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड. इट इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. यहाँ पर क्योंकि अलग अलग हर कमोडिटी का अलग अलग प्राइस डिटरमाइन होता है इसलिए हम इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहते हैं. ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स to determine the equilibrium levels of employment and income of the nation. इसलिए इसको हम the theory of general price equilibrium भी कहते हैं. इसको हम कहते हैं partial equilibrium analysis, इसको हम कहते हैं general equilibrium analysis. ये अलग अलग प्राइस कमोडिटी के प्राइस को डिटरमाइन करता है. ये पूरे कंट्री में सभी कमोडिटीज़ के प्राइस को ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई डिटरमाइन करता है. इसलिए हम इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. ये कौन सा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन सा है? पार्शियल. और ये कौन सा है? जनरल. क्लियर? नेक्स्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो फोकसेस ऑन इश्यूज अराइजिंग ड्यू टू प्राइस वेरिएशन एंड इनकम लेवल. स्मॉल लेवल पर है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की
इनकम चेंज होगी तो वो कितनी डिमांड करेगा, किसी कमोडिटी की डिमांड कम करेगा या ज़्यादा करेगा, इससे प्राइस में क्या चेंज आएगा। जबकि एट मैक्रो लेवल द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स is related with the problems of national income. So with this topic is over. The next topic we will discuss about the positive and normative economics. Positive and normative, these are the further two aspects of economics. Economics is positive as well as normative. पहले थोड़ा सा हम पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम नॉर्मेटिव के बारे में पढ़ेंगे. What are positive statements? Positive statements are objective statements that can be tested, amended, or rejected by referring to the available evidence. Means पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो एविडेंस पर बेस्ड होती हैं. मीन्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन and the testing and rejection of theories. For example, a fall in income will lead to a rise in demand for on-label supermarket foods. A fall in incomes will lead to a rise in demand for on-label supermarket food. जैसे लोगों की इनकम कम होगी तो वो कम ब्रांड की चीज़ें खरीदना शुरू कर देंगे. ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है ना, ये बेटे फैक्ट्स पर बेस्ड होती है. जैसे हम ये कहें कि what was, what is and what would be या what will be. आज से 10 साल पहले जब गोल्ड का प्राइस बढ़ा था तो गोल्ड की डिमांड कम हो गई थी. आज की डेट में गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो गोल्ड की डिमांड कम हो रही है. इन फ्यूचर जब गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज़ बेस्ड ऑन द एविडेंसेस, दिस इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट्स. क्या होना चाहिए ये सजेस्ट नहीं कर रहा, ये हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि पहले ऐसे हुआ था, आज ये हो रहा है और इन फ्यूचर ये क्या होगा. सो द पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द थ्योरी और द सिनेरियो ऑफ व्हाट वाज, व्हाट इज़ एंड व्हाट वुड बी. For example, if the government raises the tax on beer, this will lead to a fall in profits of the brewers. इसमें क्या है कि अगर बियर पर या विस्की पर या किसी भी कमोडिटी पर गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ाती है तो जो उस कमोडिटी को बेचने वाले सेलर हैं उनकी इनकम कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि उनको अपनी इनकम का एक बड़ा प्रपोर्शन एज अ टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दिस इज़ अबाउट द positive statement. Keep in your mind, positive statements are objective. They are based on the evidences or the facts. The basic scenario is what was, what is, and what would be. Clear? Next, this is about the normative statement. Normative statements are the value judgment statements. These are subjective statements. In this, instead of what was, what is, and what would be, instead of this scenario, the scenario is what was, what is, and what ought to be, what should be, क्या किया जाना चाहिए. ये सजेस्टिव होते हैं. और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो ना तो सजेस्टिव होती है, ना वैल्यू जजमेंट बेस्ड होती है, और ना ही उसमें कोई ओपिनियन होता है. जबकि नॉर्मेटिव वैल्यू जजमेंट बेस्ड होती है, हर आदमी की सजेशन होती है, मतलब अपना अपना ओपिनियन होता है. क्यों? क्योंकि इसमें हम सजेस्ट कर रहे हैं व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्टिव स्टेटमेंट्स, दैट इज दे कैरी वैल्यू जजमेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, पोल्यूशन इज़ द मोस्ट सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर हार्मफुल दैन इन्फ्लेशन एट्सेट्रा. अब कुछ लोग इस बात से सहमत हो सकते हैं कि पोल्यूशन जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से ज़्यादा सीरियस है, और कुछ लोग नहीं हो सकते. जैसे अभी कोविड के टाइम में कुछ लोगों ने कोविड की पेंडेमिक को नहीं समझा. लोग इकोनॉमी के बारे में बात करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट नहीं है या इकोनॉमी डूब रही है. मतलब हर आदमी का अपना अपना व्यू होता है. तो जो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं, दीज आर बेस्ड ऑन द ओपिनियन, वैल्यू जजमेंट. और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जाता, वो डिबेटेबल नहीं होती. जबकि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स जो होती हैं ये डिबेटेबल होती हैं, बिकॉज द ओपिनियन
of a person varies with the opinion of another person. So now what's about the key differences between positive and normative? जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए आपको डिफाइन भी करना पड़ सकता है विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल, और आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है. द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस between positive and normative economics are explained in the points given below. The very first, positive economics refers to a science which is based on data and facts. As we have already discussed, that positive statements or positive economics are based on facts or evidences. Normative economics is described as a science based on opinions, values and judgment. मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की डेट में कोविड पर काबू पाना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट अप करने के. ये मेरा ओपिनियन है, लेकिन ये ओपिनियन आपका नहीं हो सकता. आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से वेरी कर सकता है. मीन्स द नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द opinions or the values or the judgment. That's why they are quite debatable. Positive economics is descriptive but normative economics is prescriptive. Descriptive का मतलब है हम describe कर रहे हैं इसको what was, what is and what would be. और prescriptive का मतलब क्या है, हम suggest कर रहे हैं what was, what is, what should be, क्या होना चाहिए. Positive economics explain cause and effect relationship between variables. On the other hand, normative economics pass value judgment. अगर हम ये कहें कि इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, मीन्स द ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज़ 1.2% while the population growth rate in China is 0.5. और अगर इतनी ही तेज़ी से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती रही तो द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया will be at the top. मीन्स हमने एक फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है. अब नॉर्मेटिव क्या कहता है कि इंडिया को अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम कर लेना चाहिए. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया. फॉर दिस हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन बिल पास किया जाए. अब बहुत सारे लोग पॉपुलेशन बिल को पास करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, मीन्स दे आर इन फेवर, और बहुत सारे लोग नहीं हैं. सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, दीज आर बेस्ड ऑन ओपिनियंस, सजेशंस, ऑट टू बी, शुड बी, ये वर्ड्स यहाँ यूज़ होंगे. द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज ऑब्जेक्टिव while normative economics have a subjective perspective. Positive economics explain what is, whereas normative economics explain what should be. The statement of positive economics can be scientifically tested क्योंकि ये एविडेंस बेस पर होती है. मैंने आपको बताया आज से 10 साल पहले जब गोल्ड का प्राइस बढ़ा था तो गोल्ड की डिमांड कम हो गई थी. आज गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो गोल्ड की डिमांड कम हो रही है. इन फ्यूचर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी. दिस इज़ बेस्ड ऑन facts. That's why it is scientifically tested. On the other hand, it does not happen in normative economics क्योंकि this is based on opinions. Positive economics clearly define economic issues, unlike normative economics in which the remedies are provided for the economic issues on the basis of value judgment. Means जो आपने बेस लर्न करना वो ये सिनेरियो क्या है, what was, what is and what would be. और नॉर्मेटिव में क्या है, what was, what is and what should be और what ought to be. आप अपनी बुक में से भी इसको अच्छे से कर सकते हो. Then last topic, what is economy and what are its types. बच्चे, economy is a vast area that reveals how the people of concerned area earn their living or livelihood. Means what is the source of the livelihood of the people residing in a particular area. Means इकोनॉमी एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया है जो ये बताता है कि व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. लोग अपनी जीवन यापन के लिए कैसे कौन सा ऑक्यूपेशन ले रहे हैं या कैसे वो अपनी लिविंग पूरी कर रहे हैं. जैसे हम ये कहें कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज़ एग्रीकल्चर, सो वी कैन से that India is an agrarian economy. Agrarian economy is an economy
where the main occupation of the people is agriculture. So this is all about the economy. Economy can be of two types. One is the simple economy and second is the complex economy. सिंपल इकॉनमी ये ऐसी इकॉनमीज़ हैं जो हिस्टोरिकल होती थी, मतलब बहुत पहले होती थी, इनिशियल पीरियड में होती थी, इन वेयर द लेवल ऑफ इनकम इज़ वेयर द लेवल ऑफ पीपल वेयर द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल इज़ वेरी लो, human wants are very limited, degree of mutual interdependence was limited, and exchange of goods and services was also limited. Primitives ही हैं, लोगों की ज़रूरतें बहुत कम हैं, आपस में उनका एक्सचेंज नहीं होता गुड्स एंड सर्विसेज का, एक दूसरे पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती और लोगों की इनकम कम होती है. ऑन द अदर हैंड, कॉम्प्लेक्स इकॉनमी इज़ एन इकॉनमी वेयर इनकम लेवल ऑफ पीपल इज़ क्वाइट हाई, वॉन्ट्स आर मल्टीपल, बहुत सारी ज़रूरतें हैं. अगर हम आज के टाइम में देखें, आर वॉन्ट्स आर मल्टीपल. अभी ज़रूरत पड़ी हमें मास्क की, कोविड के टाइम में मास्क एक कंपल्शन बना. अब आप देख रहे हो मार्केट में हज़ारों से भी ज़्यादा तरीके के मास्क अवेलेबल हैं, मींस वैरायटी ऑफ गुड्स. और अब हम जो है अपनी पसंद से लेते हैं, कौन सी ड्रेस के साथ कौन सा मास्क अच्छा लगेगा, कौन से स्टफ़ कैसा होना चाहिए, मींस अब हमारी वॉन्ट्स जो है वो मल्टीपल हैं. एंड हाई डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एज वेल एज एक्सचेंज. आज के टाइम में अगर हम ये सोचें कि कोई आदमी अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर ले, इट्स नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, मीन्स देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस. नाउ आफ्टर दिस वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक. This is, there are three types of economies. One is controlled or centrally planned economy, also known as socialistic pattern economy. For example, China, Russia and North Korea. We will discuss about the features of these three economies in the next slide. Then free economy, also known as capitalist economy, also known as free market economy. For example, USA and UK. Third, this is mixed economy. For example, India. India is the best example of mixed economy. Now, what's about the comparison? First, we will discuss about the definition. Centrally planned or socialistic economy or controlled economy is an economy where resources are owned, managed and controlled by the government. On the other hand, in capitalist economy or free economy, market economy, resources are owned, managed and controlled by the individuals, by the capitalist. Next, mixed economy is an economy where there is a coexistence of capitalism as well as socialism. There is coexistence of private as well as public sector. देखो बेटा, जो आपकी सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी है वो एक ऐसी इकॉनमी है जिसमें सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, मींस पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. पब्लिक सेक्टर बोलते हैं उन एरियाज़ को जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं. और कैपिटलिस्ट इकॉनमी या फ्री मार्केट इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी है जहाँ पर रिसोर्सेज आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडिविजुअल्स. कैपिटलिस्ट, जिनके पास पैसा है उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, मींस उन्हीं के पास सारे रिसोर्सेज हैं. और जैसे हम कहते हैं ना, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला सिस्टम होता है. जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसका इकॉनमी में ज़्यादा रोल होगा. नेक्स्ट, मिक्स इकॉनमी में दोनों ही होते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी प्रिवेल करता है, मींस इंडिविजुअल्स भी होते हैं, और गवर्नमेंट भी होती है, मींस पब्लिक सेक्टर भी होता है. देन ऑब्जेक्टिव. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी इज़ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर. जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल सबसे ज़्यादा हो जाता है वहाँ पर मोटिव जो है वो सोशल वेलफेयर का होता है. फ्री मार्केट इकॉनमी में मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. इंडिविजुअल्स हैं, कैपिटलिस्ट हैं, पैसा लगा रहे हैं तो प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव होता है. मिक्स इकॉनमी में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर एज वेल एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट भी प्रमोट करना है और सोशल वेलफेयर. प्रॉफिट के लिए हम सेल्फ इंटरेस्ट लेते हैं
अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो मैं उसको इस तरह से इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगी जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। अब इंडिया में या मिक्स इकॉनमी में क्या है, दोनों ही सेक्टर होते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर एज वेल एज टू मैक्सिमाइज द सेल्फ इंटरेस्ट और प्रॉफिट। Then role of government. In centrally planned economy, the entire role or a significant role is played by government in economic activities, क्योंकि सारे रिसोर्सेज उसके हाथ में हैं। सो वही डिसाइड करेगा कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। एज इन चाइना एंड रशिया, every decision, economic decision is taken by the government. That is, what to produce, how to produce, how much to produce, and for whom to produce. On the other hand, we can say that the role of government is quite significant in centrally planned economies. On the other hand, in capitalist economy or free economy, the role of government is just like a night watchman. The main role of government is just to maintain the law and order. There is no role played by government in economic activities. कोई काम नहीं है उसका, कोई डिसीजन उसको नहीं लेना। उसका काम सिर्फ यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा। मिक्स्ड इकॉनमी में गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिक्स्ड इकॉनमी का एग्जांपल इंडिया, आपने इंडिया में देखा है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। प्राइम मिनिस्टर आते जाते रहते हैं और हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में बताते हैं और हम उन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। मीन्स अ कीन significant role is played by the government in mixed economy. Then consumer sovereignty. Consumer sovereignty का मतलब होता है जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम where the consumer is the king, means the commodities are produced according to the needs and aspirations of the consumer. मीन्स वही सामान प्रोड्यूस किया जाए जो कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर सोवरेनिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज द एवरी इकोनॉमिक डिसीजन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट। वहाँ पर वही सामान प्रोड्यूस होगा जो गवर्नमेंट चाहेगी, वो नहीं प्रोड्यूस होगा जो कंज्यूमर्स चाहेंगे। ऑन द अदर हैंड, इन कैपिटलिज्म और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज़ एट द टॉप। ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि वही सामान प्रोड्यूस हो जो कंज्यूमर्स खरीदना चाहते हैं। इन केस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कंज्यूमर सोवरेनिटी इज़ देयर बट इट इज़ लिमिटेड, क्योंकि दोनों ही सेक्टर प्रिवेल करते हैं। पब्लिक सेक्टर वो सामान प्रोड्यूस करता है दैट इज़ डिमांडेड बाय द पुअर सेक्शन, प्राइवेट सेक्टर वो सामान प्रोड्यूस करता है दैट इज़ डिमांडेड बाय द रिचर सेक्शन। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस पॉइंट that all the economic decisions like what to produce, how to produce, how much to produce, for whom to produce will be taken by the government in centrally planned economy. All these economic decisions will be taken by the private individuals in case of free market economy, and the economic decisions will be taken by the private sector as well as by the government in case of mixed economy, because there is coexistence of private as well as public sector. So with this topic is over. I am sending you the assignments. Dear students, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे, इस वीडियो में भी मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। आपको ये क्वेश्चन साइड बाय साइड अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस योर फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर. Go through the chapter thoroughly. You have